जोधपुर में जारी G20 रोजगार समूहની બેઠકનો આજ दूसरो दिन। બેઠકમાં વિભિન્ન શ્રેણીના શ્રમિકારા કૌશલ સુસંબંધિત મુદ્દા માથે ચર્ચા। કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત કયા બેઠક સુ રોજગાર સૃજનની દિશામાં મિલેલી બड़ी मदद। जोधपुर में आज दूसरा दिन बैठक में शामिल होगा आया प्रतिनिधि करया हेरिटेज वॉक। प्रतिनिधि राजस्थानी लोक कला और सांस्कृतिक धरोहर ने भी देखा। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में अनुसूचित क्षेत्र विकास योजनावां और कामारी प्रगति की समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। जनजातीय क्षेत्रना लोगारा जीवन स्तर में सुधार खातर सगला संबंधित विभागा सु मिलर काम करवाने कह्युं। विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में हुयो शुरू। शोभायात्रा में ऊंट जत्था लोक कलाकार और सांस्कृतिक कार्यक्रम देशी विदेशी पर्यटका ने कर्या आकर्षित। प्रदेश में मौसम शुष्क होवा पछे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी। मौसम विभाग मुजब अधिकांश जिला में न्यूनतम तापमान सामान्य रहवाना आसार। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगणारू घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक चल रही है। आज बैठक रो दूसरो दिन है। बैठक में न्यारी श्रेणीरा श्रमिकारा कौशल से जुड़ोड़ा मुद्दा माथे चर्चा वेरी है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बैठक रा उद्घाटन सत्र ने संबोधित कर्या। वे कहा कि बैठक सु रोजगार सृजन री दिशा में बड़ी मदद मिलेली। G20 Employment Working Group. Dear delegates, I would like to extend my gratitude to my colleague, Minister of Labour, Shri Bhupendra Yadav ji, and employment, as well as the rest of the organizing team for bringing this event to Jodhpur. The city is honored to host such an important gathering of leaders and experts in the field of labour and employment. And I am confident that the discussions and outcomes of this meeting will be instrumental in shaping the future of the employment globally. As the host country for this important event, India is honored to have the opportunity to lead the G20 in addressing the critical issue of employment that is so vital to the prosperity and well-being of all our nations and our people. Our active participation in the G20 since its inception is a testament to our commitment to global cooperation and our shared goal of creating a more prosperous world for all. It also underlines that solutions of the labor and employment challenges we face today must be inclusive, sustainable, and equitable for all. The challenges facing the global labor market are complex and far-reaching, and it is only through cooperation and collaboration that we can hope to find meaningful solutions. The current situation of employment and social security around the world has been affected by the ongoing COVID-19 pandemic. Many countries have seen significant increases in unemployment as a result of the economic downturn caused by the pandemic. Many small and medium-sized businesses have been particularly hard hit, leading to job losses across a wide range of sectors. India, through world's largest public distribution system, distributed food grains to 800 million people during the pandemic and continuing till date. Also through world's largest government-funded health assurance scheme, that is Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, India provides health coverage for over 500 million people. Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, with an outlay of rupees 228 billion, incentivized employees for generation of employment along with provision of social security benefits. I would also like to take a moment to express my deep appreciation to all of the members countries of the G20, as well as the guest countries and international organizations that have come to attend this meeting. Your presence here is a testament to the importance of this issue
and the commitment that we all share to working towards a more prosperous and equitable global economy. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत G20 ने लिए जोधपुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी। केंद्रीय मंत्री कहा कि भारत ने बदलता हालात में G20 की अध्यक्षता मिलबो अहम है। वे कहा कि G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं रो समूह है। केंद्रीय मंत्री कहा कि जोधपुर अतिथि सत्कार की उत्कृष्ट परंपरा रो परिचय दियो है। G20 दुनिया की बड़ी 20 इकोनॉमीज का एक समूह, और अब जबकि वैश्विक परिदृश्य में इस G20 समूह की आवाज अत्यंत महत्वपूर्ण हुई है, और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब विश्व कोविड की आपदा के बाद एक बदले हुए परिदृश्य में एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, उस समय में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत को उसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। कुल जो प्रतिभागी 20 देश, 9 गेस्ट कंट्रीज और 14 ऑर्गेनाइजेशंस, 43 जो संस्थानों से और भारत के ऐसे एक्सपर्ट्स मिलाकर के जितने लोगों को इस पूरे कार्यक्रम में अपेक्षित किया था, मेरे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि 100% उपस्थिति इस कार्यक्रम में सभी सहभागी संस्थानों और देशों की हुई है। आज से जो मीटिंग प्रारंभ हुई है, इस पर 3 प्रमुख विषयों पर चर्चाएं होंगी। एक, एड्रेसिंग ग्लोबल स्किल गैप्स। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जिस तरह से मैकेनाइजेशन बढ़ा है, मैकेनाइजेशन के बाद में अब सब चीजें जो है ऑटोमाइजेशन की तरफ जा रही है। रोबोटिक्स का इंटरवेंशन सारी इंडस्ट्रीज और उद्योगों में हो रहा है। उसके कारण से पूरी दुनिया में जो है एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो में कहीं कमी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट के परिदृश्य बदल रहे हैं। ऐसे में स्किल्स के जो गैप हैं, नई जिस तरह की आवश्यकताएं हैं, उनको हम किस तरह से जो है भर सकें, उस दृष्टिकोण से पूरे विश्व भर में किस तरह से चिंतन हो रहा है, किस दिशा में काम हो रहा है और किस तरह से हमको उस पर काम करने की आवश्यकता है, इस पर विस्तार से विचार विमर्श होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इंटरनेशनल स्किल गैप पोर्टल ऐसा बनाने पर काम कर रहा है, जहां दुनिया के ऐसे सारे देश, जहां दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास में काम ज्यादा है लेकिन काम करने वाले लोगों की कमी है, हैंड्स टू वर्क आर डेफिसिट। सो ऐसी परिस्थिति में दुनिया में जिन देशों के पास में डिविडेंड है, वो अपने लोगों को स्किल करके, भारत जैसे देश दुनिया के दूसरे देशों में जहां काम की आवश्यकता है, वहां किस तरह से उनके लिए रोजगार का सृजन कर सकते हैं, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं, इसके ऊपर जो है गहनता के साथ में विचार विमर्श आज होने वाला है। दूसरा विषय जिस पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा होगी, दैट इज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, और उनको सोशल प्रोटेक्शन किस तरह से मिले। तीसरा विषय पूरे विश्व के सामने जो कोविड पैंडेमिक के बाद में जिस तरह की आर्थिक परिदृश्य बना है, उसके चलते हुए और उसी के साथ साथ में विश्व ने जिस तरह का बुरा दौर इस कोविड पैंडेमिक के समय में देखा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की महत्ता उसके कारण से प्रतिस्थापित तो हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को चलाने की का संकट दुनिया के सभी देशों की सरकारों के सामने खड़ा हुआ है। निश्चित ही भारत ने इस दिशा में बहुत उत्कृष्ट काम किया है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए हम किस तरह से दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस से एक दूसरे से सीखें। बजटरी सपोर्ट के साथ साथ में जो कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम्स चलती हैं, जो पेंशन स्कीम्स चलती हैं, ईपीएफओ की स्कीम्स चलती हैं, एसआईसी की स्कीम्स चलती हैं, उन सबको किस तरह से और ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, रोबस्ट बनाया जा सकता है, इस विषय पर भी आज की इस बैठक में, आज और कल की इस बैठक में विचार विमर्श होगा। जोधपुर में चल रहा G20 सम्मेलन में बड़ी तादाद में स्थानीय हथकरघा और दस्तकार स्थानीय उत्पादारी प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी में दस्तकार राजस्थान की विशिष्ट पहचान वाला उत्पादारू प्रदर्शन करया है। वहां का संवाददाता धर्मेश भारती दस्तकारा सुवणारा उत्पादा माथे बातचीत करी।
देखिए, जोधपुर के अंदर G20 डेलीगेट्स के लिए राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट हैं और हैंडलूम हैं उनका यहाँ डिस्प्ले किया गया है और जो राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और डिस्प्ले किया गया है। और G20 डेलीगेट्स जो है इस पूरी की पूरी प्रदर्शनी का अपना एक अलग आनंद ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मोहनलाल गुजर, मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं। आप बताइए सर, G20 डेलीगेट्स ने ये पूरा विजिट किया, क्या रिएक्शन था और क्या ये आपका पूरी मोचड़ी का? सर, ये G20 में हम जोधपुर से ही हूँ मैं, और ये काम हमारा पुश्तैनी काम है। तो इस काम को करते हुए हमारी करीब 7 पीढ़ी होगी, 3 पीढ़ी तो हम यहाँ ही बैठे हैं। तो ये मोजड़ी का काम जो जोधपुर में एक जिनगर कम्युनिटी करती है, और इसमें मेरे को मदर को नेशनल अवार्ड विनर है और मेरे को भी सन 2016 में नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। आपने मोचड़ी के अलावा भी और बहुत सारे नए प्रोडक्ट इसमें बनाए हैं। लेदर के बैग्स बनाए हैं, चेयर्स है, ये स्टूल है, सारा कुछ नया आज के ज़माने में जो मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से बना हुआ है। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो पुरानी परंपरागत कला है उसके अंदर भी जो है कलाकार एक नवाचार लेकर आए कि हैंडलूम के अंदर खास करके एक पंजा दरी जो जोधपुर में काफ़ी मशहूर है और बड़े परंपरागत तरीके से उसको बनाया जाता है। हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक क्राफ्ट्समैन मौजूद हैं, आनंद राम जी। आनंद राम जी से हम पूछेंगे कि आखिर ये पंजा दरी क्या है, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है। आनंद राम जी, आप बताएं ये पंजा दरी क्या है, कब से ये चली आ रही है और G20 डेलीगेट्स ने क्या कहा आपको ये देखकर? सर, ये दरी तो ऐसे हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, कम से कम 7-8 पीढ़ी तो हमें पता है। और G20 डेलीगेट्स ने भी आपकी इस पंजा दरी को देखा, क्या उनका रिएक्शन रहा? उनका हमारे प्रति अच्छा रिएक्शन रहा, उनका भी अच्छा काम है, हाथ का है पूरा, ये उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मेरे साथ हैं प्रसिद्ध चित्रकार लाल सिंह भाटी जी। हम उनसे पूछते हैं कि ये जो जोधपुरी शैली है ये क्या शैली है और इसमें क्या विशेष महत्वपूर्ण चीज़ है, वो बताएंगे हमें। ये मारवाड़ स्कूल के ऊपर जोधपुर शैली कहते हैं, जोधपुर कलम कहते हैं, जोधपुर स्टाइल कहते हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, सोने चांदी के रंगों का इस्तेमाल होता है और कतीर का इस्तेमाल होता है। कुछ फूलों के और पेड़ की छालों के रंग भी इसमें काम में लिए जाते हैं। तो G20 डेलीगेट्स ने भी ये देखा, उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन अच्छा है कि पहली बार ऐसा देखा है, या तो म्यूजियम में देखते हैं या इधर देखा है, क्योंकि ये जो एम्बॉस और मुनब्बात का रही और ये सब मेरे ही बनाए हुए हैं और इनमें एम्बॉस का काम किया हुआ है जिसको मुनब्बतकारी कहते हैं। ये और कहीं बहुत कम देखने को मिलता है महलों के अलावा। राजस्थान की मशहूर टाई एंड डाई जो है, जिसके लिए बंधेज कहा जाता है, उसका भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और यहाँ बताया गया है कि मेरा रंग रंगीलो राजस्थान केवल लोक संस्कृति में भी नहीं है बल्कि परिधानों में भी यहाँ पर जो है रंग रंगीला हमारा राजस्थान है। ये जो बंधेज है इसके बारे में आप बताएंगे, क्या ये बंधेज है, क्या पूरा कॉन्सेप्ट है? बंधेज फैब्रिक जो है वो भारत की संस्कृति का सबसे पुराना और सबसे ऑस्पिशियस फैब्रिक है जो हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। इसके 2 वेरिएशंस है जिसमें एक आप देख सकते हैं लहरिया, जो यूजुअली यहाँ के लोग सावन के टाइम पहनते हैं। दोनों फैब्रिक का सीजन बताया गया है। जो G20 डेलीगेट्स हैं उन्होंने भी देखा, उनका क्या रिएक्शन? G20 में भी जो डेलीगेट्स यहाँ पर अभी तक आए हैं, हालांकि अभी आने स्टार्ट हुए हैं, उनका रिस्पॉन्स भी बहुत, वो क्यूरियस है जानने के लिए यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट को कि क्या कैसे कहाँ से शुरुआत हुई इस कारीगरी की और कहाँ तक। आप हमारे आर्टिजन से भी बात कर सकते हैं कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमारा टाई एंड डाई का जो यहाँ का स्टॉल है उसमें किस प्रकार बेहतरीन एक डिस्प्ले किया गया। अब हम देखते हैं कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि G20 डेलीगेट्स को सर ये हैंडीक्राफ्ट्स का जो आपका डिस्प्ले देखा क्या रिएक्शन उनका एग्जैक्टली था? सर, एवरीवन, हर जो है डेलीगेट्स देखने वाला काफ़ी इम्प्रेस है और जोधपुर जैसी जगहों पे हम ये इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाए हैं। जो भी डेलीगेट्स बाहर से आए हैं वो सब काफ़ी इम्प्रेस है और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छा टीम वर्क है और हमें बहुत खुशी है यहाँ इस G20 समिट में जोधपुर हैंडीक्राफ्ट को प्रेजेंट करके। G20 के डेलीगेट्स आए हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे के पूरे हैंडीक्राफ्ट को और इस पूरे के पूरे डिस्प्ले को देखकर निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। कैमरामैन सुरेंद्र यादव के साथ धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जोधपुर। जोधपुर में आज दूसरे दिन बैठक में शामिल हो बाया प्रतिनिधि हेरिटेज वॉक करी। इन दौरान प्रतिनिधि जोधपुर री संस्कृति और भौगोलिक विशेषता वाले साथ ऐतिहासिक इमारतारो भी दौरो कर्या।
राज्यपाल कलराज मिश्र जनजातीय क्षेत्र लोगारा जीवन स्तर में सुधार खातर सगड़ा संबंधित विभागासु मिलर काम करवाने गया है। राज्यपाल कल जयपुर में अनुसूचित क्षेत्र विकास योजनावा और कामारी प्रगति री समीक्षा बैठक ने संबोधित कर दिया हाँ। वे कहा कि जनजातीय क्षेत्र लोगा ने गरीबी और अभाव सु मुक्त कर वणा समाज री मुख्य धारा सु जोड़वा खातर संकल्प रे साथे काम करें। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र कैंसर केयर महिला प्रकोष्ठ कानीसु निशुल्क कैंसर जांच और जागरूकता अभियान कैंसर जांच आपके द्वार की शुरुआत आज राज्यपाल कलराज मिश्र कानीसु करेगी। इन मौके राज्यपाल कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल बस भेजे जाबा करावो चोखो काम है। इनसु कैंसर प्रति जागरूकता बढ़ेली। राज्यपाल कलराज मिश्र कैंसर स्क्रीनिंग बस ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। इन मौके राज्य पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा और दूजा गणमान्य लोग मौजूद हाँ। की श्रीमती सुनीता गहलोत जी हमारे बीच में यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के पर आमंत्रित करना चाहूंगा। तो श्री नव हजारे में सभी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मन से तहे दिल से देना चाहती हूँ। ये निश्चित रूप में बड़ा ही पुण्य कार्य है। कैंसर ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी लोगों को है, पता नहीं लग पाता है। जब पता लगता है तो आखिरी स्टेज रहती है। इसलिए ये बड़ा अच्छा कार्य इस चिकित्सालय ने किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बस को भेजकर जिसमें जांच संबंधित सभी आवश्यक उपकरण हैं, बहुत अच्छा काम किया है। मैं समझता हूं इसके कारण कैंसर के प्रति जागरूक लोग होंगे और जहां भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ेगा तत्काल उसका इलाज कर सकने में सफलता भी प्राप्त होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं बहुत ही इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जयपुर महात्मा गांधी चिकित्सा विश्वविद्यालय में आज 3 दिवसीय वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस रो शुभारंभ हुयो। इन कार्यशाला में विभिन्न विशेषज्ञ कैंसर वैक्सीन और संभावना विषय माथे चर्चा करेला। आज हुआ कार्यक्रम में काफी संख्या में प्रतिभागी भाग लिया और आपरा विचार साझा कर्या। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन ट्रांसलेशनल कैंसर रिसर्च एंड इम्यूनोथेरेपी में इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम सब क्लिनिशियंस जो कि ऑन्कोलॉजी में सर्जन्स हैं या ऑन्को के मेडिसिन वाले डॉक्टर्स हैं, उनके साथ बेसिक रिसर्चर्स को साथ बिठा सकें, जिसकी वजह से जो नए ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए निकाले जा सकते हैं वो मिल के निकालें। स्वास्थ्य परिवार हो तो एक स्वास्थ्य समाज दे सकता है और स्वास्थ्य समाज एक स्वास्थ्य देश दे सकता है। पर्यटन महकमा जैसलमेर जिला प्रशासन का निसु प्रसिद्ध मरुद महोत्सव ऐतिहासिक आधुनिक और काल्पनिक थीम माते शुरू हुयो। सोनार दुर्ग सु विधायक रूपाराम धनदेव और जिला कलेक्टर टीना डाबी इनरी हरी झंडी दिखार शुरुआत करी। फेस्टिवल 2 तारीख ने पोखरण सु शुरू हुयो। इनरे साथे ही सोनार दुर्ग सु शोभा यात्रा काढ़ीगी जो शहर रा खास मार्गा सु होती हुई शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पुगी। शोभा यात्रा में बीएसएफ रा सजा धजा ऊट और इन माथे बैठा बैंड वादकार समूह रे साथे लोक कलाकारा रो जत्थो पर्यटका रो मन मोरियो है। इसका पूरा लुत्फ यहाँ के स्थानीय लोग भी गांव और ढाणी से खूब आए हुए हैं, तो यहाँ पूरा कला और यहाँ के दृश्य देखने का सभी लोग लुत्फ लेंगे। आने वाले 3 दिन कार्यक्रम का शुरुआत अभी हो गया है। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से दर्शन करके किले से शुरू हो गया है और अब ये पूनम स्टेडियम पहुंचेगा। भरतपुर वेर तहसील रा दीवली गांव में शहरी स्कूलारा बच्चा ने ग्रामीण संस्कृति सु रूबरू करवा खातर 2 दिवसीय कार्यशाला रो आयोजन करियो गयो। इन जरिए शहरी स्कूली छात्र छात्रावा ने गांव री संस्कृति रा बारा में बतायो गयो। साथ ही साफ सफाई अभियान, पौधारोपण, वॉल पेंटिंग कर अठे स्वच्छता रो संदेश भी दियो गयो।
क्योंकि मैं तो सब टाइम ये कहता हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी सबसे पहला अध्यापक तो उनकी माँ है। तो जो माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चे क्या सीखेंगे? तो माँ को पढ़ाना सबसे जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला अध्यापक बच्चों के लिए उनकी माँ होती है। During this workshop, it is a 2-day workshop from 1st February and 2nd February. Yesterday we learned how to make stools, how to make toilets. We helped in making toilets. We painted walls. We got to learn new things. Today we are here at Barefoot International workshop. We will be going to learn how to make solar lanterns. This is a very interesting workshop. Thank you. हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ आएंगे और गांव के लोगों से मिलेंगे। मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। हम कुछ गांव के लोगों के घर के अंदर भी गए और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से वेलकम करा। कुछ ये नहीं था कि कुछ अच्छे से उन्होंने हमें पानी और सबके लिए पूछा। हम लोगों ने पेड़ पौधे लगाए, भरतपुर में इधर दियोली में सफाई करी। वो हमें देख के बहुत खुश थे और जब हम उनसे बातें भी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें इनवाइट अच्छे से करना चाहते हैं। हम लोगों के लिए भरतपुर एक नई जगह थी क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पे हमने वॉल पेंटिंग करी जो कि सबके लिए बहुत नया था। हमने स्टूल्स बनाए और हमने लोकल जो लोग हैं इनके साथ हमने स्टूल्स बनाए और ये हमारे लिए बहुत नया था क्योंकि हमने ऐसा कभी पहले नहीं किया और ये बहुत अच्छा अनुभव था। हमको सबको काफ़ी अच्छा लगा। हम पहली बार भरतपुर आए थे और हमने सोचा भी नहीं था कि हम गांव में जाएंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हम शहर में रहते ज़्यादातर तो हम खाली शहर के लोगों से बात करते हैं, लेकिन गांव के लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। एक नया अनुभव था हमारे लिए और फिर हमने स्टूल कैसे बनाते हैं वो भी सीखा। ऐसे हम लोग दुकान में जाते और ले लेते हैं, परंतु हमने कभी सोचा भी नहीं था कैसे हम लोग धागे से स्टूल बना सकते हैं। जयपुरा रामबाग गोल्फ ग्राउंड में 5 फरवरी ने गोल्ड कप टूर्नामेंट रो आयोजन कर्यो जावेलो। CII और एक निजी बैंक तत्वावधान में आयोजित होबाला इन आयोजन में न्यारा खेतरासु करीब 120 खिलाड़ी भाग लेवेला। CII राजस्थान रा चेयरमैन गौरव रुंगटा बताया कि इन आयोजन रो उद्देश्य लोगा में खेला रे साथ साथ स्वास्थ्य सारू जागरूकता भी बढ़ानो है। 5 फरवरी को खेला जाएगा रामबाग गोल्फ क्लब जयपुर में और इसके अंदर 120 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें मेनली जो खिलाड़ी हैं वो कॉर्पोरेट जगत और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं और दिल्ली NCR से भी काफ़ी लोग खेलने आ रहे हैं और बाकी राजस्थान ओवरऑल राजस्थान से काफ़ी लोग खेल रहे हैं। टोटल 120 पार्टिसिपेंट्स होंगे। फिटर राजस्थान, हेल्दियर राजस्थान, तो उस मोटो को लेते हुए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम फिट रहें। अगर हम फिट रहेंगे फिजिकली तो मेंटली हम ऑर्गेनाइजेशन को 100% अपना दे सकते हैं। टोंक में सेवा भारती रो किशोरी विकास प्रकल्प कार्यक्रम राख्यो गयो। टोंकरा नगर फूट तहसील में माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में किशोरिया ने योग, खेल, जूडो, कराटा रो अभ्यास करायो गयो। सेवा भारती रा महिला समन्वयक अनिल शुक्ला बताया कि इन दौरान किशोरिया ने खेल, सौंदर्य संबंधी गतिविधियां करवाई जावेली। इनरा उद्घाटन कार्यक्रम में गोपाल वैष्णव, राम प्रसाद रतननामा, अनीता चौधरी मौजूद हैं। और अब खबर मौसम री। प्रदेश में मौसम शुष्क होबारे पाछे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम महकमा रे मुजब अधिकांश जिला में न्यूनतम तापमान सामान्य रहबारा आसार है। वटेही अधिकांश जिला में दिन रो तापमान औसत सु बत्तो रहबारी संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब अगला 24 घंटा रे दौरान शीतलहर चालबारो आसार है। और चाल बहु पहली एक बार फिर से जोवा मोटी खबरां। जोधपुर में जारी G20 और चाल बहु पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां।
जोधपुर में जारी G20 रोजगार समूहरी बैठक रो आज दूसरो दिन। बैठक में विभिन्न श्रेणीरा श्रमिकारा कौशल सुसंबंधित मुद्दा माथे हुई चर्चा। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया बैठक सु रोजगार सृजन री दिशा में मिलेली बड़ी मदद। जोधपुर में आज दूसरा दिन बैठक में शामिल होबाया प्रतिनिधि करया हेरिटेज वॉक। प्रतिनिधि राजस्थानी लोक कला और सांस्कृतिक धरोहर ने भी देखा। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में अनुसूचित क्षेत्र विकास योजना में अरकामारी प्रगति की समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। जनजातीय क्षेत्र लोगारा जीवन स्तर में सुधार खातर सगला संबंधित विभागा सु मिलर काम करवाने कह्यु। विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में हुई शुरू। शोभा यात्रा में ऊंट जत्था, लोक कलाकार और सांस्कृतिक कार्यक्रम देशी विदेशी पर्यटका ने कर्या आकर्षित। और प्रदेश में मौसम शुष्क होबारे पछे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी। मौसम विभाग रे मुजब अधिकांश जिला में न्यूनतम तापमान सामान्य रहबारा आसार। हाल ताईरा खास राजस्थानी समाचार।